Well, it was an outstanding performance by Islamabad United. They needed to win this one with a certain margin and really sort of secure that spot in the top two, and that's what we saw from him. Salman Irshad nailing that Yorker, and jubilation all round in this camp. A happy camp indeed. They've been quite exceptional at the start of the HPL PSL, lost their way somewhere in the middle, but they've managed to redeem themselves, and the good news for them now is that they get more opportunities for that final. Well led by Shadab Khan as well. Overall, Islamabad United scoring those runs and making the right decisions. Well, this is how things went in this match here. Islamabad United 251 for 5 in their 20 overs. Remember, Hales was brought in and made that blistering knock. 88 of just 35 balls, was well supported by somebody like Saibzada Farhan. He's had a good tournament this HPL PSL. In response, Karachi Kings were never really in it. Bowled out for 172, Islamabad United winning by 79 runs. Right then, Islamabad United has managed to displace Karachi Kings from that number 2 spot, and Quetta Gladiators right at the top with 15 points. Islamabad United 12, Karachi 12. These are your 4 teams, with Lahore Qalandars at the number 4 spot. So we're off to Lahore now. The Pindi leg has finished. Quetta Gladiators at the top with Islamabad United. It's going to be the virtual knockout game that we will have in Lahore. And the advantage that Islamabad United and Quetta Gladiators both have is that they get 2 attempts at that final. So good news for both their fans. Hello and welcome to Pitside. It's been a phenomenal win for Islamabad United. They were considered the team to beat, defending champions of this HPL PSL, lost their way somewhere in the middle of the season, but now some valuable additions with Alex Hales at the top, brought back in Rassi van der Dussen as well. So it's all been really good for Islamabad United. And to talk us through this wonderful win, we've got the captain Shadab Khan next to us alongside Bazid Khan. Shadab, thank you so much for joining us. पहले तो ये बताएं कि बड़ा ज़रूरी था, मैच जीतना तो एक बात है, लेकिन securing that top 2 spot ताकि आपके पास एक और मौका हो फाइनल के लिए, क्या डिस्कशंस हुई थी मैच में आने से पहले? देखिए, ऑब्वियसली हमें पता तो था कि हमने कितने मार्जिन से जीतना है, या तो ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हमने ये करना है वो करना है। कोशिश ये की है कि बस जो चीज़ें हमें आती हैं, सिंपल प्लान्स हैं, जिस तरह हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे प्लान्स थे उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि अगर हमने लंबा स्कोर करना है तो उसमें ये नहीं है कि आप जाते साथ ही मारना शुरू करो, अपनी इनिंग बिल्ड करो और उसके बाद आपको अपना जो भी बॉलर आपको समझ आता है इस पिच के हिसाब से आप उसको टारगेट करो। इंटेंट नज़र आई एट द टॉप फ्रॉम एलेक्स हेल्स एंड साहिबजादा फरहान। फरहान का तो हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि उनका बड़ा अच्छा HPL PSL रहा है, लेकिन एलेक्स हेल्स भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफ़ी साल उन्होंने गुजारे हैं और आते साथ उन्होंने आके जिस तरह से स्कोर किया, लग नहीं रहा था कि ये उनका पहला मैच है HPL PSL का। मेरे ख्याल से मुझे किसी से वो बात कर रहा था तो मुझे लगता है कि वो ILT20 के बाद ये पहला मैच खेला है, तो मुझे लगता है जो पैडल खेल रहा था आज शॉटें भी वैसी ही रही थी, तो मुझे लगता है वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। मतलब उसके बारे में क्या बोलना, क्योंकि थ्रू आउट ईयर खेलता रहता है वैसे T20 लीग्स, लेकिन अभी वो 2-3 महीने से रेस्ट में था और अपनी फिटनेस पे काम कर रहा था, आपने देखा भी है। लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड और एलेक्स हेल्स ब्रेक के बाद सही खेलते हैं। ब्रेक ये मुझे तो मैं अभी आप बातें कर रही थी ना कि वो बिटवीन हमने कोई मोमेंटम लूज़ किया, सबसे पहले बंदे थे जिन्होंने नज़र लगाई हमारी टीम को। वो जैसे ही जीतते थे कहते थे कि पहले मोमेंटम तो नहीं पकड़ लिया, पहले मोमेंटम तो नहीं पकड़ लिया। मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले बंदे यही थे जिन्होंने कहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी मतलब टॉप टीम। ये बात बताने वाली नहीं है। चलो वो तो रहने दो, वो तो खुद रहते हैं ना यहीं पे। PSL के शुरू होने से पहले इन्होंने यहाँ पे दावा दिया, लेकिन मैं जब भी हम जीते हैं इन्होंने पूछा कि मोमेंटम जब ब्रेक हुआ अब बेहतर नहीं, अच्छा हुआ है, ये हर काम में अल्लाह की बेहतरी। नहीं, कभी कभार वो कहते हैं ना कि पीकिंग टू अर्ली भी बाज़त ठीक नहीं लेकिन होता। जो बार बार सवाल यही बनता है, अब जैसे एलेक्स हेल्स वापस आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ के जाता है कभी ये वो रिग्रेट नहीं, वो अच्छे लफ्ज़ों में ही याद करते हैं। ये आपकी मैनेजमेंट का कमाल है। मुझे 2 जो आपके मैनेजमेंट में मुझे लोग पता है, एक तो ज़ुखरुफ जानी
जिनको मैं जानता हूँ, कभी उनकी मुंह से ना नहीं सुना। रेहान भी इसी किस्म का है, तो शायद वो मैनेजमेंट का इतना कमाल है कि जो यूनाइटेड में प्लेयर रहता है वो हमेशा वापस भी यूनाइटेड में आता है, तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट से अगर आप देखें तो अगर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारे ओनर्स हैं, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने फ्री हैंड मैनेजमेंट को दिया हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट से ही माहौल बनता है और उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। कभी सिलेक्शन में उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ से। और दूसरा, जिस तरह आपने पूरी टीम है जो हमारी, ओबियसली हमारे जो प्लेइंग कोर है, उसी तरह हमारी मैनेजमेंट की भी कोर है, जो हम कोशिश करते हैं कि वो कभी हमारे से छूट के ना जाए। और जिस तरह आप जानी को तो जानती हैं, रेहान भाई हैं, हसन आज़म है, अजलान भाई हैं, जतोई है, जितने भी हैं, क्योंकि वो सारे ऐसे फ्रेंडली हैं। जो यंगस्टर भी आता है, अगर आप यंगस्टर से भी बात करेंगे, वो भी इंजॉय करता है, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे के साथ खाना भी इकट्ठे खाते हैं। मुझे लगता है कंपनी रोटी टाइम पे मिलती है, रोटी आगे नहीं, पीछे मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गया आज। गया। हाँ, लेट हो गया आजकल काम, मैच लेट ख़त्म होता ना। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने एक अच्छी इन्वायरमेंट की बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इन्वायरमेंट अच्छी होने की वजह से प्लेयर्स भी जो हैं वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं, नज़र आ रहा है। स्पिनर्स में आपकी अपनी परफॉर्मेंस, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इमाद वसीम का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इतनी आसान कंडीशंस तो नहीं है पिंडी की जहाँ पे इतनी बैटिंग फ्रेंडली है, तो उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसके थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी देखें, जैसी मर्जी कंडीशन हो, वो हमें कंटेन करके देता है और कंटेन के साथ वो विकेट भी लेके दे रहा है। तो जो हम चीज़ उससे डिमांड करते हैं, जितना वो एक्सपीरियंस है और जितनी अब क्रिकेट को वो इन्जॉय करना शुरू हुआ है, मैंने काफ़ी अर्से बाद उसको देखा है कि वो क्रिकेट को इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है टीम में। तो ऐसे प्लेयर आपको टीम में चाहिए होते हैं, जो एक्सपीरियंस भी है जिसके पास, और मैच विनर है, प्रूवन मैच विनर है, तो ऐसे प्लेयर आपको हमेशा चाहिए होते हैं टीम। लेकिन इस दफ़ा आपने यूज़ उसको थोड़ा डिफरेंट किया है। नॉर्मली जब आप टीम शीट देखते हैं, इमाद वसीम ये नया बॉल करेगा, पावर प्ले में करेगा, लेकिन आप लोगों ने उसको ज़रा पावर प्ले के बाद यूज़ किया है। देखिए, वो तो कम्बिनेशन के लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आज हमारा वैसे प्लान था, लेकिन क्योंकि वार्नर खेल रहा था, तो हमने कोशिश की है कि जब हम बैटिंग भी कर रहे थे, पिच थोड़ा लो था और थोड़ा स्लो साइड पे था, तो हमने यही असेस किया कि अगर जितना बॉल पुराना होता जा रहा है, वो थोड़ा मुश्किल है, किसी भी, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। स्पिनर को थोड़ा ये था कि होल्ड भी ज़्यादा मिल रहा था आज की पिच से, पिंडी वाली पिच से, तो कोशिश ये की है कि जितना मिडल में उसको यूज़ किया जाए, और उसने कंटेन भी करके दिया और 2 क्रूशियल विकेट लेके दिए। तो लाहौर की कंडीशंस पिंडी से बहुत मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे ये वाली अप्रोच जो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ टू गेट गोइंग, जिसे कहते हैं फ्रॉम बॉल 1, वो वाला हमें नज़र आएगा, वो वाली अप्रोच नज़र आएगी, या आपको थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, वहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। नहीं, देखें, ओबियसली अडेप्ट करना पड़ेगा। जो हम पिछले 3 मैचेस वहाँ खेलें, वो काफ़ी डिफरेंट थी, यहाँ की कंडीशन से वो काफ़ी मुश्किल थी। T20 के लिहाज से वो वाली कंडीशन बहुत कम ही मिलती है, तो डेफिनेटली हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। शायद वेदर, अभी काफ़ी टाइम तो हो गया, मेरे ख्याल 2 हफ्ते हो गए हैं, तो शायद वेदर की वजह से कंडीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ओबियसली जब हम जाएंगे कोशिश करेंगे कि कंडीशन को असेस करें और उसके साथ ही अपने प्लान्स बनाएं। आपकी अपनी बॉलिंग पे आ जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब आप जर्सी पहनते हैं तो लगता है एक डिफरेंट हमें शादाब खान नज़र आता है, क्या रीज़न है इसका? आई मीन, यू फील मोर कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट, और व्हाट इज़ इट? वी सी अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ यू। देखिए, इसमें मुझे खुद नहीं समझ आ रही, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री होता हूँ और इधर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, और शायद ऐसा माहौल, बैकिंग मिली हुई है मुझे बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मैं खुद जज नहीं कर पाया कि क्या ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, कि मैं जब इस्लामाबाद की तरफ से आता हूँ तो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा हाई होता है, और अगर मुझे अच्छी लिटरली आज मुझे ऐसा लगता था कि पूरे टूर्नामेंट में मैंने जितनी भी बॉलिंग कराई है, आज मेरे हाथ से वैसा बॉल निकल नहीं रहा था, लेकिन आउट हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा नहीं भी करता, स्टिल जो बैकिंग होती है, कोई जज करने वाला नहीं होता, तो मुझे लगता है वो वाला फ्री हैंड शायद ऐसे तो नहीं है जैसे कि इंसान जब घर जाता है तो बिल्कुल ही रिलैक्स, ऐसे लगता है कि शादाब खान का असल घर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, यहाँ से ही आपका राइज़ हुआ है, और जो लोग आपके साथ चल रहे हैं वो शुरू से ही आपके साथ हैं। तो फ्री हैंड की आपने बात की है,
लेकिन कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह अभी आपने बात की है कि स्टार्ट ही यहीं से किया और अभी भी वहीं, और एक घर की तरह फील होता है, क्योंकि जब आपको पीस चाहिए होता है तो आप हमेशा अपने घर की तरफ ही जाते हो। तो ओबियसली एक रिलैक्स माहौल है, एनवायरनमेंट भी है, कंफर्ट जोन भी दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, माइक हैसन अब पाकिस्तान टीम के भी कोच अनाउंस हो चुके हुए हैं। वैसे उनकी रोल के ऊपर भी काफ़ी प्लेयर से भी बात की है कि कितना उनका सॉर्ट ऑफ एक कंफर्टेबल रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट रखते हैं। आपकी उनके साथ कैसी है एक जिसे कहते हैं इक्वेशन उनके साथ, कैसा कोच उनको समझते हैं? ज़्यादा कंसल्ट करते हैं उनके साथ, या फिर ज़्यादा बस बाहर बैठ के ज़रा चुप करके ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें? देखिए वो डिफरेंट अंदाज होते हैं कोचेस के। हाँ, वो ऑब्ज़र्व करता है, और मुझे लगता है कि मैंने इतना काम कोच वैसे कभी देखा नहीं। जैसी मर्जी सिचुएशन हो, बहुत काम रहता है। पता नहीं वो ये इमोशनल इतना ज़्यादा है नहीं कि अपने इमोशन रोक के रख कर, बड़े मुश्किल है, लेकिन बहुत काम है। होपफुली जिस तरह मैंने पहले बात की है कि एक फ्री हैंड और कंफर्ट जोन जिस तरह उसके पास है इधर, होपफुली वो जो पाकिस्तान टीम के भी कोच रहे, तो उसमें हम सब लोगों का बहुत अहम किरदार है, आप सब लोगों का भी, कि वो वाला कंफर्ट जोन दिया जाए, टीम बिल्ड करने के लिए उसको टाइम दिया जाए। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अच्छे तरीके से कर सकता है। अच्छा, वो सब छोड़ें, आप बहुत शानदार फील्डर हैं। यहाँ पे इस HPL PSL में, बल्कि खासकर पिंडी में, ये हाई कैचेस ने छूट क्यों रहे? क्या आपकी क्या थ्योरी है? मुझे तो वैसे इतना कोई डिफरेंट लगा नहीं है। ये तो आपकी अपनी प्रिपरेशन कैसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आजकल के स्टिल जो लड़के आ रहे हैं यंगस्टर, काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि आप अच्छे फील्डर होते आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप वो वाली चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं। तो जो हमारे दोनों यंगस्टर भी हैं, मेरी उनसे उस दिन भी बात हो रही थी कि मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर में से एक हैं। तो लेकिन वो जब भी बॉल के नीचे आते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। जिस तरह हम अभी अगर क्लब क्रिकेट खेलते हैं तो हमें लगता है कि हम चीज़ें जाके ईज़िली कर सकते हैं। तो जब कोई अच्छा फील्डर होता है तो वो उसको लगता है कि यार जो भी है मैं ईज़िली चीज़ें कर सकता हूँ। चलें, ठीक है शादाब, आपके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड उम्मीद यही करते हैं कि आपको गुड लक कहते हैं अगले मैच के लिए, एंड होपफुली सी यू इन लाहौर। उधर नहीं होंगे? नहीं, उधर भी बोल देना। खैर हम भी उधर ही होंगे। आपने पहले कुछ नहीं बोलना कि मोमेंटम गलत पकड़ा है, सही पकड़ा है, जो भी पकड़ा है सही पकड़ा है। नहीं, ये इनकी अभी तक प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी जा रही हैं बाजिद की। हाँ, पहली 4 प्रेडिक्शन की जो हमारे थे वो तो जान के करवाए थे ना। अच्छा, जान के करवाए नहीं, थे। वरना तो कहना ये चाह रहे हैं कि पहले शुरू में जीतना, फिर एक आध कुछ मैचेस हारना, फिर दोबारा से मतलब एक वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो खैर बड़ी अच्छी इनकी प्रेडिक्शन थी। देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन एंड तक क्या होता है आपकी प्रेडिक्शन का बाजिद। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन शादाब, प्लेजर टू हैव यू ऑन पिच साइड। Huge congratulations to Islamabad United. We'll take a short break, and when we come back we'll have a closer look at this game.